all the questions that came you will came across regarding this chapter. तो आपको ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं as it is compulsory chapter. So in our last meeting we came across that what efforts were taken by French revolutionaries for the idea of nation state and for collective belongingness. Okay, French people, they wanted their own nation, that is republic. Republic, it means democracy. Okay, so for democratic ideas, for democracy means they want that particular mindset of the people. तो वो माइंडसेट उनको चाहिए था, तो वो माइंडसेट बनाने में उन्होंने कैसे मतलब कोशिश की, how they tried their best in order to bring collective identity among masses, among citizens, and that is most important thing that we are going to learn. Okay, in our last lecture we studied it, but still I'm revising because important question it is, and it is important, and again means so many time asked in board exams also, and so that see, first, in order to bring collective identity, for creating sense of collective identity, French revolutionaries, they introduced idea of la patrie, that is fatherland, and le citoyen, that is the citizen, put emphasis on notion of united community enjoying equal right under a constitution. So la patrie मतलब ये हमारा fatherland है, because in eastern side of the world, in eastern countries we call it motherland. हम भारत को भारत माता बुलाते हैं, भारत पिता नहीं. But in western part of the countries, in western side countries, they call their country as fatherland. वो अपने country को पिता बुलाते हैं. ठीक है. So idea of la patrie, that is their fatherland, and les citoyens means they were citizen of that country. So they put emphasis, तो उन्होंने emphasize किया on the notion of a united community. हम एक यूनाइटेड कम्युनिटी है, यूनाइटेड कम्युनिटी का जो ये आइडिया है, तो नोशन इट मींस आइडिया, तो हम यूनाइटेड कम्युनिटी का हिस्सा है और हम सब इक्वल राइट्स एंजॉय करेंगे अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन. एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा रहेगा कि जिसमें सेट ऑफ रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, अ सेट ऑफ रूल्स दैट इज अबाइड बाय ऑल, और जिससे सारे सिटीजन अबाइड है, जिससे सारे लोग बंधे हुए हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक हिस्सा रहेंगे. एंड दैट्स व्हाई दिस आइडिया ऑफ ला पेट्री एंड ली सिटोयन दैट वाज पुट फोर्थ बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी. ओके, देन सेकंड, न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राइकलर that was chosen to replace the former royal standard. So नया फ्रेंच फ्लैग उन्होंने लाया. फ्रेंच फ्लैग में ट्राइकलर दे इंट्रोड्यूस, जैसे इंडिया का हमारा ट्राइकलर है वैसे फ्रांस का भी ट्राइकलर था. So that was chosen to replace the former royal standard. जो पुराना रॉयल फ्लैग था, that was replaced. वो मतलब रिप्लेस किया गया और उसकी जगह पर ट्राइकलर फ्लैग जो है तो वो इंट्रोड्यूस किया गया. Then third, the State General जो है, the State General was elected by the active citizens and was renamed the National Assembly. States General जो है तो मतलब उनको active citizens choose करेंगे, ठीक है. So and उसका नाम rename किया, that was elected by active citizens and it was renamed, State Generals की जो body है उसको rename किया गया as National Assembly. National Assembly उसका नाम रखा गया. Then fourth, new hymns were composed, नए hymns मतलब लिखे गए. Oaths were taken, नई कस्में खाई गई. And the martyrs commemorated, मतलब जिन्होंने अपने कंट्री के लिए अपनी जान दी है, ऐसे मार्टियर्स को याद किया गया. ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, सब नेशन के नाम से, कि लोगों में नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, कलेक्टिव आइडेंटिटी, ये जो सेंस है वो डेवलप हो. सो ऑल दिस एफर्ट्स वर टेकन बाय revolutionaries to create nation state in a nation state of France. Then apart from that, there is last point, a centralized administrative system was put in place and it formulated and it formulated uniform laws for all the citizens within the territory. See, centralized administration system was introduced, centralized administration system introduce की गई, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है तो वो यूनिफॉर्म लॉज बनाएगी.
So during the time of Louis 16, it so happened at the time of Louis 16 ऐसा होता था कि मतलब फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट सभी के लिए लॉज अलग अलग थे. नाउ दिस यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉज वाज डेवलप्ड. ये यूनिफॉर्म सिस्टम जो है लॉज का वो डेवलप किया गया विद इन इट्स टेरिटरी. पूरे टेरिटरी में ये यूनिफॉर्म लॉज रहेंगे एंड एवरीबडी इज अबाइड बाय दीज लॉज. और हर कोई जो है तो ये लॉ का हिस्सा रहेगा. एवरीबडी जो है तो ये लॉ को फॉलो करेगा. दैट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड. ओके, so this was done in order to create collective identity, sense of collective identity among French subjects, French people. So French people यहाँ तक हमने देखा था last lecture में. I just try to revise this so that you should get it to connected. Now let us see. आगे French revolutionaries ने declare किया कि it was their mission that they will write destiny of their nation. अपने नेशन की तकदीर वो लिखेंगे and that is their mission. और जो यूरोप के अदर पीपल है कि जो ये डेस्पोटिज्म सहन कर रहे हैं, दैट इज किंग्स रूल, सेंट्रलाइज रूल, तो उनको डेस्पोटिज्म से फ्री कराएंगे एंड एट द सेम टाइम मतलब अदर यूरोपियन नेशंस को भी फ्रीडम लाने में वो हेल्प करेंगे. एंड दैट वाज देयर मिशन. इट वाज डिक्लेयर बाय फ्रेंच पीपल. देन what happened that as the news of France, what changes took place in France that spread everywhere in Europe. Okay, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग जगह पर यूरोप में सभी जगह ये जो न्यूज है वो फैल गई. और अदर मेंबर्स जो है एजुकेटेड मिडिल क्लास के इन सिटीज, अदर सिटीज, डिफरेंट सिटीज, दे स्टार्टेड सेटिंग अप जैकोबियन क्लब. उन्होंने जैकोबियन क्लब बनाना स्टार्ट किया. उनकी एक्टिविटीज और उनके जो कैंपेन्स है तो मतलब उन्होंने फ्रेंच आर्मीज के लिए मतलब रास्ता तय किया. और वो मतलब धीरे धीरे फ्रेंच आर्मी जो है वो हॉलैंड में गई, बेल्जियम में गई, स्विट्जरलैंड में गई, थोड़ा सा इटली का पार्ट उन्होंने कवर किया. एंड 1790s तक मतलब ये जो सारी कंट्रीज है, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, वहां पर ये नेपोलियनिक रूल जो है जहाँ पर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यूनिफॉर्म लॉज, ये सारा उन्होंने डिक्लेयर किया. And French armies they began to carry the idea of nationalism abroad. और नेशनलिज्म का ये जो आइडिया है ये बाहर स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ. ठीक है, विद इन द वाइड स्वैथ ऑफ टेरिटरी. तो ये टेरिटरी में क्या हुआ कि मतलब जो नेपोलियन के कंट्रोल में थी तो उन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम, यूनिफॉर्म लॉज जो है तो वो सेट किए. तो दीज लॉज ही ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस. ये फ्रांस में आ चुके थे. ठीक है, सो मोनार्ची रिटर्न हो चुकी थी. नो डाउट फ्रांस की डेमोक्रेसी वापस डिस्ट्रॉय हुई, बट एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड जो है तो इसमें रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए और इससे मतलब ये सिस्टम जो है ज्यादा रैशनल और इफिशिएंट होती गई. तो नेपोलियन डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय की उसने एंड वंस अगेन मतलब वो डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय करके वहां पर उसने सेंट्रलाइज पावर मतलब उसका रूल, सेल्फ रूल, सेंट्रल रूल, सेंट्रलाइज पावर, वन मैन रूल, मोनार्ची इंट्रोड्यूस की. बट नेपोलियन ही इंट्रोड्यूस सर्टन रिफॉर्म्स. पर कुछ रिफॉर्म्स उसने इंट्रोड्यूस किए. तो वो रिफॉर्म्स उसने कौन से इंट्रोड्यूस किए, लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रीनशॉट. एक स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ आपके साथ तो उससे समझ में आएगा कि मतलब ऐसे कौन से रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स जो है वो नेपोलियन ने लाए. ओके, सी ये जो नेपोलियनिक कोड है, नेपोलियनिक कोड वाज आल्सो नोन एज सिविल कोड ऑफ 1804. ठीक है, इसको बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804. 1804 बोलते हैं सिविल कोड, यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड. इसको नेपोलियनिक कोड उसका सेम ही नाम है. अगर आपको क्वेश्चन सिविल कोड ऑफ 1804 आया तो भी यू हैव टू राइट द सेम आंसर. नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 आया तो भी यू हैव टू राइट द सेम आंसर. ओके, सो मतलब सबसे पहला इट डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ. बर्थ को लेकर जो भी कुछ स्पेशल राइट्स थे, जो प्रिविलेजेस थे, सारे प्रिविलेजेस उसने खत्म किए नेपोलियन ने. सेकंड, ही एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ. लॉ के सामने इक्वालिटी मतलब हम सब इक्वल है, लॉ सभी के लिए सेम रहेगा. दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ वो उसने लाई. Then third reform he did, that is he secured right to property. मतलब प्रॉपर्टी जिसकी है उसकी ही रहेगी. No one is going to snatch
even government, even king will not try to snatch the property of an individual. एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी वो स्नैच नहीं करेगा. एंड ये जो कोड है दैट वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स फ्रॉम फ्रेंच कंट्रोल टू मीन्स फ्रॉम फ्रांस टू अदर रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल. फ्रांस में ये सब कुछ वो ला चुका था, पर दूसरे जगह पर जहां पर मतलब उसने न्यू कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, ऐसे सभी जगह पर ये कोड उसने लाया. कहाँ कहाँ? डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी. सो अपार्ट फ्रॉम दैट नेपोलियन ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन. पुराने टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन जो का जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स होता था. तो उसने क्या किया, अलग अलग डिविजन्स बनाए, उसमें कौन सा डिवीजन किसके अंडर में होना चाहिए, ऐसे लाइक दैट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन उसने बनाए. एंड एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, लैंडलॉर्ड की जो सिस्टम है तो उसने वो खत्म की. और पीजेंट्स को सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज इससे फ्री किया. ही फ्री पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज. सर्फडम मतलब क्या, कि मतलब एक जो लैंडलॉर्ड है उसका मतलब कोई ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सेस वगैरह वसूल करने के लिए रखा हुआ जो इंसान है मुनीम लाइक, so he used to collect all the taxes, all the share for landlord, so that is serfdom. Manorial dues, it is a kind of tax, ये एक टैक्स है. so उससे उनको पीजेंट्स को फ्री करवाया. टाउन में भी उसने मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रिमूव किए. रिस्ट्रिक्शंस क्या थे टाउन में? गिल्ड्स थे. गिल्ड्स मतलब क्या, जो मतलब बिजनेसमैन है तो जो वो बिजनेसमैन की एक ये यूनियन है, गिल्ड इट मीन्स, और उसमें नए लोगों को वापस नहीं आने देना. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग पुराने हैं तो ऐसे लोगों ने मिलकर काम करना कि इससे कम रेट में वो नहीं बेचेंगे ऐसा. ऐसे जो मतलब कुछ उन्होंने यूनियन बना के जो रेस्ट्रिक्शंस लाए हुए थे कि जिससे न्यू कमर जो है तो वो बिजनेस में एंटर नहीं कर पा रहे थे, उसने वो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस रिमूव किए. ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को मतलब इम्प्रूव किया. पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन, उन्होंने न्यू फाउंड फ्रीडम एंजॉय किया. बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर जो है गुड्स के इन पर्टिकुलर, उन्होंने यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स एंड एक कॉमन नेशनल करेंसी जिससे गुड्स का एक्सचेंज, कैपिटल का एक्सचेंज एक रीजन से दूसरे रीजन में इजी हो, तो ऐसे उसने सिस्टम बनाई. हाउएवर जो एरिया नेपोलियन ने जीता वहां पर मतलब पॉपुलेशन जो है, रिएक्शंस ऑफ लोकल पॉपुलेशन, वहां के जो लोकल पॉपुलेशन का जो रिएक्शन था नेपोलियन के बारे में दैट वाज मिक्स. फ्रेंच रूल सही है गलत है, मिक्स था. मेनी प्लेसेस में जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, वहां देन कुछ सिटीज है जैसे ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, वॉर्सा, तो वहां पर फ्रेंच आर्मी को वेलकम किया गया. दैट फ्रेंच आर्मी इज हर्बिंजर ऑफ लिबर्टी. हर्बिंजर इट मीन्स क्या, कि एंजल, एंजल ऑफ लिबर्टी ऐसे बोल के उनको वेलकम किया गया. बट इनिशियल एंथुजियाज्म जो है, मतलब ये शुरू का जो एंथुजियाज्म है उनका, तो वो धीरे धीरे टर्न इनटू हॉस्टिलिटी. धीरे धीरे उनको समझ में आया कि इसमें क्या काटे हैं ये सिस्टम में. धीरे धीरे दे केम टू नो अबाउट द लूप होल्स, ड्रॉबैक्स ऑफ द सिस्टम, और ये क्लियर हुआ कि ये जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है तो उसमें पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है. टैक्सेस इंक्रीज हुए, सेंसरशिप आ गई, फोर्स कंस्ट्रक्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज, देन जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में मतलब उनको रिक्रूट करना. मतलब कि पूरा यूरोप उनको कॉन्कर करना है, तो इससे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के जो एडवांटेज थे, तो ये सारे एडवांटेज जो है वो लोग भूल गए एंड दे बिगेन टू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ नेपोलियनिक रूल. ठीक है. In that way this was the most important topic, both of the topics, that is collective identity and second Napoleonic code. Both of the questions, both of the topics are important from the point of view of exam. Questions may be asked. Okay, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको. तो क्वेश्चन के लिए मतलब जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने नीडेड है तो उतने मैंने बताए. ठीक है. लुइस 16 की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची थी, बट उसके बाद नेपोलियन नहीं आया. उसके बाद तो काफी अलग अलग, लास्ट ईयर जो पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के बाद जैकोबियंस का रूल आया, फिर डायरेक्टरी रूल आया, उसके बाद वापस फ्रांस रिपब्लिक हुआ. अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद मतलब वापस से फ्रांस में फिर जब डेमोक्रेसी इंस्टॉल हुई, ये मतलब नेपोलियन ने वो लुइस फिलिप जो है तो उसको वापस लाया था.
तो उसके बाद वापस मतलब डेमोक्रेसी जब आई तब फाइनली फ्रांस डेमोक्रेटिक हुआ। 5 बार रूल चेंज हुआ है फ्रांस में, ठीक है। तो मतलब वैसे नहीं होगा वो, लाइक दैट इट इज। नाउ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पेज नंबर 8 पर आ जाइए, बुक का टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 पर देखिए। ये जो नेशनलिज्म का, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो है, तो उसको स्टडी करेंगे। दोज हु हैवंट म्यूट देमसेल्व्स स्टिल, दे शुड म्यूट, ओके, सो दैट you can listen effective lecture. Now अगर आप मिड 18 सेंचुरी का फ्रांस का मैप, यूरोप का मैप, मतलब कॉन्टिनेंट्स के मैप देखो, अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब इसके मैप देखो, कॉन्टिनेंट्स के अलावा अलग अलग कंट्रीज के मैप देखो, तो आपको दिखेगा कि कहीं भी नेशन स्टेट्स नहीं है। देयर वर नो नेशन स्टेट, नेशन स्टेट्स कहीं भी नहीं है। जैसे आज हम जानते हैं कि ये फ्रांस है, ये इटली है, ये स्विट्जरलैंड है, ये ऑस्ट्रिया है। तो आज हमें आज हम इन मतलब इसको बॉर्डर्स को, ये स्टेट्स को, ये नेशंस को, ये कंट्रीज को जैसे आज हम रेक्टिफाई करते हैं, आज हम रिकॉग्नाइज करते हैं। सो टिल मिड 18th सेंचुरी देयर वर नो नेशन स्टेट, नेशन स्टेट थे ही नहीं। देयर वर ओनली किंगडम्स, सिर्फ किंगडम्स थी, और कोई किंगडम पर कोई और रूल कर रहा था तो किसी और किंगडम पर किसी और का रूल था, ठीक है। ऐसा कंपटीशन हर जगह, मतलब किंग्स थे, मोनार्क्स थे, लुइस थे, कहीं पर जार थे, एंड उनकी प्रजा थी, ठीक है। सो जब आज का हम जर्मनी देखते हैं, इटली देखते हैं, स्विट्जरलैंड देखते हैं, सो मतलब ये पुराने टाइम में छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हुआ था, ठीक है। कुछ किंगडम्स थे, कुछ डचीज थे, कुछ कैंटन्स थे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखो, किंगडम्स थोड़ा बड़ा होता है, डचीज उससे छोटा, कैंटन उससे छोटा, दैट इज एरिया रूल बाय पीपल, ठीक है। और उसके रूलर्स जो है तो उनकी ऑटोनॉमस टेरिटरी, ऑटोनॉमस मींस इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट टेरिटरी पर रूल कर रहे थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो है तो मतलब ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज के अंडर थे, और मतलब उसमें डाइवर्स पॉपुलेशन रहता था। सो कलेक्टिव आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर, ये कोई चीजें थी नहीं वहां। ये जो डाइवर्स पॉपुलेशन है तो इसमें देयर वाज नो कलेक्टिव आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी या फिर उनका कॉमन कल्चर, ऐसा कुछ भी नहीं था। पॉपुलेशन पूरा डाइवर्स था। कभी कभी उनकी लैंग्वेजेस अलग थी, कभी कभी उनके एथनिक ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स भी अलग थे। जैसे एग्जाम्पल दिया है हैब्सबर्ग एम्पायर, ओके। हैब्सबर्ग एम्पायर में देखो, मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर जो है ऑस्ट्रिया हंगेरी, तो मतलब उस पर रूल कर रहा था हैब्सबर्ग एम्पायर। तो उसमें अलग अलग रीजन्स एंड अलग अलग पीपल, इसका वो पैचवर्क था। तो इसमें सबसे पहले अल्पाइन रीजन था। आप आपका फ्लो चार्ट बनाओ, पुट हेडिंग हैब्सबर्ग एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर डालो, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट में डालो अल्पाइन रीजन। अल्पाइन रीजन जो है उसके अंडर में जो टेरिटरी है उसके नीचे अल्पाइन रीजन में लिखो द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुदेतन लैंड, ठीक है। टायरोल था, ऑस्ट्रिया था, सुदेतन लैंड था। देन बोहेमिया, बोहेमिया था, और मतलब अरिस्टोक्रेसी प्रीडोमिनेंटली यहाँ की जर्मन स्पीकिंग थी। मतलब अल्पाइन रीजन की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अल्पाइन रीजन। तो अल्पाइन रीजन में क्या क्या था, टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुदेतनलैंड, बोहेमिया। और ये चारों पार्ट जो अल्पाइन रीजन में बिलोंग करते हैं, यहाँ पर जो अरिस्टोक्रेसी मतलब क्या, किंग का जो रेस है, किंग की जो डायनास्टी है, दे वेर जर्मन स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग लोग इन पर रूल कर रहे थे। इसमें इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी थे इसमें ही, अल्पाइन रीजन में, लोम्बार्डी एंड वेनेटिया। तो लोम्बार्डी, वेनेटिया, ये अलग अलग पार्ट, दैट इज इटालियन स्पीकिंग थे। देखो किंग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, जर्मन स्पीकिंग, ठीक है। रूलर्स जो थे दे वेर जर्मन स्पीकिंग, एंड पॉपुलेशन दे वेर मिक्स, इटालियन स्पीकिंग भी उसमें थे, मतलब लोम्बार्डी एंड वेनेटिया, तो ये भी पार्ट उसमें इंक्लूडेड। देन उसके बाद देखो सेकंड हंगेरी, पहला अल्पाइन रीजन हुआ, दूसरा भी हंगेरी में, ठीक है। हंगेरी में देखो आधा जो पॉपुलेशन था दे वेर मगयार, दे स्पोक मगयार, मगयार स्पीकिंग, मगयार लैंग्वेज बोलते थे। और बाकी जो है, बाकी बचा हुआ जो हाफ पॉपुलेशन है, दे मतलब दे स्पोक वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, अलग अलग दूसरे डायलेक्ट्स वो बोलते थे, ठीक है। लैंग्वेज पर डायलेक्ट्स होते हैं। व्हाट इज डायलेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल टेक एग्जांपल ऑफ मराठी। तो मराठी जो जलगांव रीजन, खानदेश रीजन में बोली जाती है, दैट इज डिफरेंट। मराठी जो मराठवाड़ा रीजन में बोली जाती है, दैट इज डिफरेंट समवॉट। जो विदर्भ में बोली जाती है मराठी, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट।
जो मतलब पूना साइड बोली जाती, पूना मुंबई साइड, दैट मराठी इज डिफरेंट। जो नंदुरबार आदिवासी एरिया जिसको बोलते थोड़ा ट्राइबल एरिया टाइप, जहाँ पर डेवलपमेंट अभी तो हो चुका है, कोई डाउट नहीं, बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज ट्राइबल ओवर देयर, उनका मराठी सुनो, दैट इज डिफरेंट। तो दीज आर डायलेक्ट्स ऑफ मराठी, ये सब मराठी के डायलेक्ट्स हो गए। तो वैसे कोई एक लैंग्वेज, अभी जैसे मैं हमारी मारवाड़ी लैंग्वेज, मारवाड़ी लैंग्वेज राजस्थान में जो बोली जाती है वो डिफरेंट है, जो मारवाड़ी लैंग्वेज मराठवाड़ा में बोली जाती है वो डिफरेंट है, नासिक साइड में बोली जाती है वो अलग है, जलगांव धुलिया खानदेश साइड बोली जाती है वो अलग है। सो दीज आर डायलेक्ट्स इन मारवाड़ी लैंग्वेज। तो वैसे ही वहाँ मतलब जो मगयार है तो उसके ही कुछ डायलेक्ट्स थे। तो आधा पॉपुलेशन प्योरली मगयार बोलता था, आधा पॉपुलेशन जो है तो वो वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, मगयार के कोई डायलेक्ट्स, कोई फ्रेंच लैंग्वेज के डायलेक्ट्स होंगे, जर्मन के डायलेक्ट्स होंगे, तो इटालियन लैंग्वेज के डायलेक्ट्स होंगे, तो ऐसे डिफरेंट डायलेक्ट्स वो बोलते थे। ठीक है, ये हुआ सेकंड हंगेरी का। फिर तीसरा लो इसमें जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें थर्ड फ्लो चार्ट में थर्ड इस पर डालो इसको, गैलिशिया। गैलिशिया में अरिस्टोक्रेसी जो है तो पॉलिश बोलते थे, गैलिशिया में जो अरिस्टोक्रेसी है वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। तो बिसाइड दिस थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स, ये तीन डोमिनेंट ग्रुप थे, कौन से बताए मैंने, पहला वाला अल्पाइन रीजन, दूसरा हंगेरी, तीसरा गैलिशिया। सो देयर वेर आल्सो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर, एम्पायर की बाउंड्रीज पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स, छोटे छोटे सब्जेक्ट पीजेंट पीपल थे, बोहेमियंस थे एंड स्लोआक्स, स्लोआक्स एंड बोहेमियंस नॉर्थ में थे, देन स्लोनीज वो कैमियोला में थे, क्रोआट्स साउथ में थे, रोमन्स टू द ईस्ट ऑफ ट्रांसिल्वानिया, ट्रांसिल्वानिया के ईस्ट में थे। तो इतना डिफरेंस था, एक एम्पायर को डिस्कस करो तो उसमें वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी, इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतना सारा डाइवर्स पॉपुलेशन। सो पॉलिटिकल यूनिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी, इसका सेंस इन लोगों में आना, दैट वाज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टिल मिड 18th सेंचुरी। सो ओनली वन बाइंडिंग इशू, एक चीज उनको बांध के रख रही थी, एंड दैट वाज कॉमन, उनका राजा एक था, कॉमन एम्परर। ठीक है, उनका अलायंस टू द एम्परर, कि सभी का जो किंग है तो वो कॉमन है। ओके, सो इन सो उनका बाइंडिंग इशू क्या था, यूनाइटेड इशू क्या था, कि वो सब कॉमन एम्परर जो है, तो कॉमन एम्परर उनका है, उनका राजा एक है और इसके लिए उन्हें साथ में रहना है, एंड दैट वाज द बाइंडिंग इशू फॉर हैब्सबर्ग एम्पायर। इज दैट क्लियर टू यू? हैब्सबर्ग एम्पायर क्लियर हुआ आपको? इज सिंपल, तीन ग्रुप में डिवाइड करो, डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, और उस ग्रुप ग्रुप बना के उसको स्टडी करो तो वो मतलब इजीली ध्यान में आएगा। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। ओके बेटा, वी आर हैविंग रिकॉर्डिंग, सो डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन। ओके बेटा, सो एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास देखो, अभी सोशली और पॉलिटिकली मतलब एक लैंडेड अरिस्टोक्रेसी जो है वो डोमिनेंट क्लास था ये कॉन्टिनेंट का। ठीक है, लैंडेड अरिस्टोक्रेसी मतलब क्या, वो वेल सेटल थे, और एरिस्टोक्रेटिक पीपल मतलब क्या, राजा महाराजाओं की फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग। ठीक है, सो ये डोमिनेंट क्लास था उस वक्त वो कॉन्टिनेंट का। जो मेंबर्स है इस क्लास के, तो उनके कॉमन वे ऑफ लाइफ, उनके तौर तरीके सेम थे लाइफ के, और मतलब ऑल्दो वो रीजनल डिवीजन जो है, मैंने एक बार बताया, समझ में नहीं आया कि रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, यूट्यूब पर अपलोड करने वाले, क्या इंप्रेशन रह जाता है एक टीचर का भी और स्टूडेंट्स का भी। सो कि कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स, रीजनल डिविजन्स भी अलग अलग रहे तो भी उनका कॉमन वे ऑफ लाइफ, सभी चीजें जो है वो मिलती जुलती थी। दे ओन स्टेट्स इन कंट्री साइड, कंट्री साइड में उनके अलग अलग स्टेट्स थे, टाउन में हाउसेस थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे वो, बिकॉज फ्रेंच लैंग्वेज एट दैट टाइम वाज अ सिंबल ऑफ हाई सोसाइटी, हाई सोसाइटी का ये सिंबल है, इसके लिए जानबूझ के वो फ्रेंच लैंग्वेज जो है तो वो यूज करते थे। उनकी जो फैमिलीज है तो उनको टाइज ऑफ मैरिज, मतलब शादी के बंधन में जो वो बनती थी। इनका जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी है, हाउएवर मतलब ये स्मॉल ग्रुप था न्यूमेरिकली। ठीक है, बट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो पीजेंट्स थे, पीजेंट्री था।
सो अगेन बट फिर भी बल्क ऑफ लैंड जो है, ज्यादा से ज्यादा लैंड एरिस्टोक्रेसी, नोबेल, चर्च इन्हीं के पास थी। और मतलब ज्यादातर लैंड पर मेहनत करने वाले टेनेंट्स थे या स्मॉल लैंड ओनर्स थे। बाकी ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो पैटर्न था लैंड होल्डिंग का, तो वहां पर बड़े बड़े स्टेट्स थे और सर्ब्स उनको कल्टीवेट करते थे। सर्ब्स उनको ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन चलाते थे उसका। वेस्टर्न और एंड मतलब वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप के कुछ पार्ट में और वेस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थोड़ा आ चुका था। ट्रेड जो है तो मतलब वो चल रहा था टाउन्स में, और इससे कमर्शियल क्लासेस जो है तो दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। कमर्शियल क्लासेस का एग्जिस्टेंस आया था एंड दैट वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। मार्केट के प्रोडक्शन के लिए वो बेस्ड था। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका था इंग्लैंड में सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में। बट फ्रांस और पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स जो है तो दैट इट ऑकर्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में फ्रांस और जर्मन स्टेट्स जो है तो ये 19th सेंचुरी में ही आना स्टार्ट हुआ। मतलब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, उससे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन इंग्लैंड ओनली। ठीक है, ये वेक में एक नया सोशल ग्रुप का राइज हुआ एंड दिस सोशल ग्रुप जो है तो उसको बोलते हैं वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, जो इंडस्ट्री में काम करने का काम करता था। मिडिल क्लास जो मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाले भी नहीं थे और बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं था, ऐसा मिडिल क्लास था। तो उसमें कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ बिजनेसमैन, कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे थे। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में देखो ये जो ग्रुप्स है ये स्मॉलर इन नंबर, बट 19th सेंचुरी तक सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में जो मिडिल क्लास है दिस ग्रुप्स वेर स्मॉलर इन नंबर। ठीक है, देन इट वाज अमंग द एजुकेटेड। एजुकेटेड में लिबरल मिडिल क्लासेस जो है एंड द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी की जो आइडियाज है तो दैट फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, जिसमें एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो है वो खत्म होने चाहिए so that gain popularity। मतलब ये जो educated members of middle class liberal minded that liberty should be there, individuals freedom should be there, ऐसे लोगों ने आगे बढ़ाया। दैट इज एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो है, एरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेजेस राइट्स, स्पेशल राइट्स जो है दैट शुड बी रिमूव। इक्वल राइट्स होने चाहिए सोसाइटी में। although the person is rich or poor but still he should enjoy equal rights because he is living in the same society where others are living and that's why he must get that particular right। तो इसके लिए ये इक्वल राइट्स उनको मिलने चाहिए। Now came to 2.2, what did liberal nationalism stand for? Liberal nationalism का मतलब क्या हुआ? Ideas of national unity अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में ये लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई थी। अभी लिबरलिज्म, लिबर मीन्स फ्री, ठीक है, और लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। तो ये जो टर्म लिबरलिज्म है तो लैटिन रूट लिबर से आया, इसका मीनिंग होता है लिबर, इट मीन्स फ्री। सो न्यू मिडिल क्लासेस जो है तो उनके लिए लिबरलिज्म मतलब क्या? फ्रीडम, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। लॉ के सामने इक्वालिटी, इंडिविजुअल का फ्रीडम। एंड इट एम्फसाइजेस कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेंट, तो गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है तो वो क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, रूल कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलने चाहिए, अलग अलग स्टेजेस क्या होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये सब उन्होंने बताया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबरलिज्म जो है दैट हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। लिबरलिज्म मतलब क्या? ऑटोक्रेसी को एंड करना। क्लरिकल प्रिविलेजेस जो है तो उनको खत्म करना। ऑटोक्रेसी मतलब क्या? कि किंग्स रूल एंड करना। क्लरिकल प्रिविलेजेस जो स्पेशल राइट्स है तो उनको खत्म करना। कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए थ्रू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए। 19th सेंचुरी लिबरल्स जो है तो इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब क्या? नो वन कुड स्नैच, नो वन कुड कॉन्फिस्केट योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। कॉन्फिस्केट करना मतलब क्या? जब्त करना, टेक फोर्सफुली समथिंग अवे फ्रॉम यू। ठीक है, तो उन्होंने इस बात पर भी स्ट्रेस दिया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है तो उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। कोई भी कभी आकर किसी भी प्रॉपर्टी पर राइट्स जताए, दैट शुड नॉट बी देयर, दैट शुड नॉट हैपन ओवर देयर। एंड सो दैट उन्होंने इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो लिबरल्स की मतलब इस पर भी, इस इश्यू पर भी उन्होंने स्ट्रेस किया।
फिर भी इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, तो उसका मतलब उन्होंने सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या सफरेज राइट सभी को होना, इसको उन्होंने एम्फसाइज नहीं किया था। सफरेज इट मीन्स राइट टू वोट, इसका मतलब होता है वोटिंग राइट मिलना। ठीक है, आपको रिवोल्यूशनरी फ्रांस याद करो लास्ट ईयर का, जिसमें फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था लिबरल डेमोक्रेसी का, जिसमें राइट टू वोट जो है, तो वो सिर्फ मतलब प्रॉपर्टी ओनिंग मैन जो टैक्सेस भरते हैं, तो उनको ही राइट टू वोट दिया गया है, उनको एक्टिव सिटीजन बोला गया था। ठीक है, तो सो मतलब ओनली दीज पीपल एंजॉयड पॉलिटिकल राइट्स, ऐसे ही लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, ऐसे ही लोग वोट दे सकते हैं, ऐसा बताया था। men without property, women, so these people were not given any political right, इनको कोई भी political right तो मिला ही नहीं था। ठीक है, सो जैकोबियंस का मतलब मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का जब रूल आया ना, तब ओनली फॉर ब्रीफ पीरियड, एकदम छोटे से पीरियड के लिए मतलब ये हुआ कि मतलब हर एक एडल्ट मेल्स को ही, एडल्ट मेल्स उनको सफरेज राइट दिया गया, विथ प्रॉपर्टी हो, पर्सन विदाउट प्रॉपर्टी हो, वर्कर हो, पीजेंट हो, इंडस्ट्रियल वर्कर हो, कोई भी काम करता हो, स्टिल मेल है, एडल्ट है, उनको सफरेज राइट फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 1.5 ईयर समवॉट, तो उसके लिए उनको ये मतलब राइट टू वोट दैट इज सफरेज राइट मिला था। बट नेपोलियनिक कोड जो है तो वो आया, नेपोलियन आया रूल में, वापस से उसने सफरेज राइट जो है तो वो रिड्यूस किया नॉन प्रॉपर्टीड पर्सन से, विमेन को माइनर स्टेटस में डाला, और विमेन जो है तो मतलब शादी से पहले फादर के कंट्रोल में, शादी के बाद हस्बैंड के कंट्रोल में रहनी चाहिए, ऐसे उसने बताया। ठीक है, थ्रू आउट 19th सेंचुरी, पूरे 19th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मेन जो है तो उन्होंने अपोजिशन मूवमेंट्स चलाए और इक्वल पॉलिटिकल राइट्स जो है उनकी डिमांड की। सो इकोनॉमिक स्फीयर में देखो लिबरलिज्म, तो ये हो गया पॉलिटिकल स्फीयर अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल राइट्स, या फिर मतलब पॉलिटिकल राइट्स के हिसाब से या पॉलिटिक्स के हिसाब से लिबरलिज्म का मीनिंग हुआ कि सभी को सफरेज राइट मिलना चाहिए, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन होना चाहिए, बट ये नहीं था। इसके लिए रेफरेंस ऑफ फ्रांस का दे सकते हैं। देन सेकंड, इकोनॉमिक स्फीयर में इकोनॉमिकली लिबरलिज्म मतलब क्या, तो इकोनॉमिकली लिबरलिज्म मतलब क्या, फ्रीडम ऑफ मार्केट, कहीं भी मार्केट में कौन सा भी गुड्स बेचने का हक होना चाहिए। एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, जो स्टेट ने रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं कि ये चीज यहाँ बेचना नहीं है, ये चीज यहाँ से खरीदना नहीं है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो बैन लगा के रखे हैं इनको रिमूव करना, दैट इज इकोनॉमिक लिबरलिज्म। पॉलिटिकल लिबरलिज्म मतलब क्या, राइट्स सभी को इक्वली मिलना, दैट इज पॉलिटिकल लिबरलिज्म। इकोनॉमिक लिबरलिज्म मतलब क्या, इकोनॉमिक लिबरलिज्म इट मीन्स कि सभी को मार्केट्स जो है तो उनका फ्रीडम मिलना, कोई भी चीज कहीं भी वो बेच पाना, दैट इज इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ठीक है, 19th सेंचुरी में स्ट्रॉन्ग डिमांड रही मिडिल क्लासेस की। लेट अस टेक एग्जांपल, जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का एग्जांपल लेते हैं कि मतलब जब इकोनॉमिक लिबरलिज्म नहीं था तब लोगों की, बिजनेसमैन की हालत क्या थी। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है तो उसमें देखो, had created out of countless and small principalities। अभी ये जर्मनी का जो एरिया है तो इसमें छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज थी, 39 स्टेट्स थे छोटे छोटे से। ठीक है, और हर एक की 39 स्टेट्स में 39 अलग करेंसी थी, 39 वेट्स की सिस्टम थी, मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट का अलग अलग सिस्टम था। एक मर्चेंट 1833 में हैब्सबर्ग से नरेमबर्ग उसको जाना है और वहां उसको गुड्स सेल करना है, तो उसको 11 बार कस्टम बैरियर्स, कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी। तो कस्टम ड्यूटी मतलब जितना वो गुड्स है उसके पास, जितने रुपए का, उसके 5%, मतलब 11 बार वो 5% एवरी टाइम वो कस्टम ड्यूटी भरेगा। ड्यूटीज जो है तो कभी कभी वेट के हिसाब से थी, कभी मेजरमेंट के हिसाब से थी, वो भी अलग अलग था। और रीजन टू रीजन वेट एंड मेजरमेंट तो उनके मतलब सिस्टम भी अलग अलग था। सो दिस वाज ऑल टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। देखो मेजर ऑफ क्लॉथ मतलब वो एली था, जैसे अभी मीटर है, वी काउंट क्लॉथ, मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर क्लॉथ इज मीटर। मेजरमेंट का यूनिट अभी जैसे मीटर है, हाफ मीटर है, देन सेंटीमीटर है, ऐसा। तो वैसे पुराने टाइम में इली, इली जो है तो वो मतलब मेजरमेंट का यूनिट था, और अलग अलग रीजन में उसका लेंथ अलग अलग था।
तो फ्रैंकफर्ट में एक इली मतलब 54.7 सेंटीमीटर, मेंस में एक इली मतलब 55.1 सेंटीमीटर, नरेनबर्ग में एक इली मतलब 65.6 सेंटीमीटर और फ्रीबर्ग में एक इली मतलब 53.3 सेंटीमीटर 53.5 सेंटीमीटर। ओके, तो एक इली जो है, तो एक इली के लिए मतलब उनको इतने डिफरेंट डिफरेंट उसके मतलब मेजरमेंट्स थे। और अगर कोई क्लॉथ लेके बेच रहा है तो इस मतलब हिसाब से अगर वो क्लॉथ उनको मेजर करना है और उसके 5% लगाना है तो हर जगह वो कस्टम ड्यूटी अलग अलग लगेगी। तो 11 टाइम्स ये जो कस्टम ड्यूटी है तो वो अलग अलग तरीके से काउंट होंगी, अलग अलग तरीके से मेजर होगी। तो ऐसी जो कंडीशन है तो वो देखी गई कि ये सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल है इन केस ऑफ बिजनेस। ऐसे में बिजनेस इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं सकती, कमर्शियल क्लासेस जो है वो परेशान हो जाएंगे। तो इन्होंने यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाने की मांग की, जिससे अनहिंडर्ड मतलब ऑब्स्टैकल लेस, बिना किसी ऑब्स्टैकल के, बिना किसी डिफिकल्टीज के मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल एक प्लेस से दूसरे जगह में पहुंचाया जाए।